नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है आप सभी का कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट में। पेश है आज का खबरनामा। पहले आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला में 8 घंटों की मुसलसल तलाशी के बाद फ़ौज और अस्करियत पसंदों के दरमियान तसादुम आराई में 2 अस्करियत पसंद हलाक। 4G इंटरनेट को बहाल किया जाए और बिलाजवाज़ हिरासत में लिए गए अफराद को रिहा किया जाए। फारूक अब्दुल्ला का PAGD मीटिंग में इंतज़ामिया से अपील। ज़िले अनंतनाग में बिजली के खंभों पर मरम्मत के दौरान एक शख्स की मौत और 5 अफराद ज़ख्मी। पंचायती एक्ट के तहत हमने शिकायत दर्ज कर ली है, अगर शिकायत का इजाला नहीं हुआ तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। ANC वाइस चेयरमैन मुज़फ़्फ़र शाह का बयान। खबरों की तफसील से पहले लेते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333. और अब खबरों की तफसील। आज ज़िला बारामूला के वानीगाम पाइन इलाके में सुबह फ़ौज और पुलिस ने मुसद्दिका इतला मिलने पर कि अस्करियत पसंद इलाके में छुपे हुए हैं को घेरे में लेकर तलाशियां शुरू कर दी। हालांकि सुबह फ़ौज ने गोलियों के कुछ राउंड भी चलाए, लेकिन अस्करियत पसंदों ने कोई जवाब नहीं दिया। मुसलसल 8 घंटों की तलाशी के बाद तसादुम आराई शुरू हुई, जिसके नतीजे में 2 अस्करियत पसंद हलाक हुए हैं। इतला के मुताबिक अस्करियत पसंदों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। इलाके में तलाशियां जारी है, मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। आज पीपल्स अलायंस गुपकार डिक्लेरेशन का एक गैर मामूली इजलास तलब किया गया। इस मौके पर इत्तेहादी पार्टियों के लगभग तमाम सरबराहान मीटिंग में शामिल थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फौरी तौर 4G इंटरनेट बहाल करने पर जोर दिया। सजाद गनी लोन का कहना था कि अगरचे ज़िले तरक्याती इंतखाबात पुरअमन तौर इख्तिताम पजीर हुए तो बिना जवाज़ क्यों सियासी लीडरों को कैद किया गया है। That 4G should be restored immediately. It's unfortunate that the democracy people of this state, our children, are suffering. Students are suffering because they have to be now online, everything. Our business people are suffering. I requested the governor the other day when I was in that inauguration of the hospital. I said the 4G should be restored. While the Prime Minister is talking of 5G, we don't even have 4G. We think this should be restored as quickly as possible. And those people who are held up in thanas for no rhyme or reason must be released immediately if you want democracy to survive. Thank you. Thank you, sir. And they should be released immediately. This is our demand. We are today here with the mandate of the people, a majority mandate, a decisive mandate, and we say that they should be released. Thank you. PAGD will work together hereafter, sir, as well? Absolutely. Yeah. Why do you have doubts about it? Absolutely. You try to create doubts? No, sir, no. Then It is as strong, much stronger today than it was when it was formed. so don't put any such things. We are united and we will continue to be united Inshallah. for what this People's Declaration stands for. And let's hope that you all have a pleasant stay in this tragedy of the season that is coming, which is आज हम मिले DDC इलेक्शन के बाद पहली बार और ये मीटिंग थी जायजा लेने की। पहला तो we met and expressed gratitude to the people of Jammu and Kashmir, to those people who voted and even to those who did not vote for us. Gratitude to them who came out in very large numbers and reposed faith in democracy, strengthened democracy in the state, in jail.
Now that the people of Jammu and Kashmir, after so many upheavals, have reposed their faith in the democracy of this country, it is incumbent upon the onus lies on the administration to reciprocate that respect and faith in democracy. I would say that there are some disturbing reports coming about interference in democracy, in people's verdict, wherein the government of the day is acting in a partisan manner and in fact becoming a partisan by directly, indirectly facilitating moves by some people to attract independence towards them. Bit loud, by sir, bit confining loud. them. I think they should resist from this and not humiliate this great verdict of the people of Jammu. History is replete with examples that those who try to humiliate verdicts of people, they end up with a disaster. We need to respect this verdict and show respect to the people of Sir, bit loud, sir. Under no circumstances should democracy be tinkered with, interfered with. That is totally unacceptable. Preventive detention. The other new trend is preventive detention. What is the logic? Election has ended. It has been one of the most peaceful elections in the last 3 decades. The most non-violent, peaceful election. And this should have ended up with something good. That it ends with preventive detentions is something which is totally antithetical to the way the elections have been held in terms of peaceful, in terms of peace, in terms of lack of violence. While as traditionally in the last 3 decades, we have seen so much of violence, one fails to understand that when you have elections conducted so peacefully, why do you need to detain people? As they have detained in the past, we condemn these detentions with all the power that we have. And we just hope that after such a great performance of democracy, we are not faced with these arbitrary detentions which are illegal. आज जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के नंबल मटन इलाके में बिजली खंभों को तब्दील करते हुए प्राइवेट कंपनी के 5 मुलाजमीन तरसीली लाइन अचानक गिरने से ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों को फौरी तौर नज़दीकी हस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम अनीस अहमद भट्ट वल्द अब्दुर्रहमान भट्ट साकिन कुकरनाग हस्पताल पहुँचते पहुँचते दम तोड़ बैठा। आज ANC के वाइस चेयरमैन मुजफ्फर शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बांडीपोरा के गुरूरा इलाके में दोबारा पोलिंग के सिलसिले में पंचायती एक्ट के तहत अपनी शिकायत दर्ज करवाने की तफसील देते हुए कहा कि अगर यहाँ भी हमारी शिकायत का इजाला न हुआ तो उसके बाद RTI करके तहकीकात करवाई जाएगी और अगर वहाँ भी हमारी ना सुनी गई तो अदालत आलिया का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि यहाँ के लोगों ने इलेक्शन में अपने वोट का सही इस्तेमाल करके जाहिर कर दिया कि लोग दफ़ा 370 और 35A को बहाल करवाना चाहते हैं। जो बीजेपी बड़ा लंबा चौड़ा दावा कर रही है कि फूल यहाँ पे ये कमल खिला है 3 जगहों पर, उनको मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये आप हमारे पंजों में से निकले बाहर। ये 3 जो निकले हैं, ये 3 छोटे छोटे जानवर हमारे पंजे से निकले। और जहाँ तक बालाहमा का ताल्लुक है, जहाँ पर इनके नेशनल यूथ प्रेसिडेंट थे, भाई मेरे वहाँ पर हमारे जो कैंडिडेट थे राही रियाज अहमद साहब, उनके जो पेपर्स हैं उनको दुरुस्त पाकर, स्क्रूटनी से दुरुस्त पाकर, जब 5 बजे इसका पूरा प्रोसेस खत्म होता था उस वक्त इनको बुलाया गया कि इसमें ये खामी है। और हमने पूछा उनको कि आपने ये खामी क्यों नहीं दी पहले, जब आपने इनको फॉर्म ये दे दिया उस वक्त क्यों नहीं दिखाया? आपने तो सब चालू किया, सब देखा आपने, हर कोई चीज़ दुरुस्त थी, अब कैसे हो गया ये? सो उसमें उनने कोई टाइम इस तरह से बांधा था कि हमको कुछ करने का मौका ही नहीं मिले। और एक टेक्निकलिटी की वजह से वो सीट हमारे हाथ से, अलायंस के हाथ से निकली। हालांकि उसका पूरा जो जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन पे, हमने बहुत एहतिजाज किया था, कुछ नहीं सुना उनने।
पूरा सोचे समझे उन्हें एक गेम प्लान बनाया था कि किस तरह से पीएचडी को वहाँ से हटा जाए, नहीं तो उस बंदे का जो वहाँ से वो जीता है उसका कोई सवाल ही नहीं था बालहमा से सीट जीतने का। और जो दूसरी चीज़ें ये बता रहे हैं आपके जी, कमल 2 जगह पे और खिला है, काकपोरा में और अपने तिलेल में, वो उस तरह की कार्रवाई हमारे शाहनवाज साहब ने, आपके ये जो दूसरे उनके साथ साथी थे यहाँ पे, चुग साहब जो आए थे, बीजेपी की पूरी टीम, उनके मिनिस्टर सारे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उन्होंने जो कार्रवाइयाँ इसमें काकपोरा में और आपके तुलेल में की, दे ट्राइड इट ऑलमोस्ट एट 20 to 30 प्लेसेस, मगर चूंकि वहाँ पे इतना रश निकला लोगों का, वो नहीं कर पाए वो कार्रवाई, नहीं तो उन्होंने हर जगह पे ये कोशिश की थी। सो मेरे बीजेपी के भाई लोगों, आप ये जो 3 सीटें आप बता रहे हैं कि इन 3 सीटों से आपने पूरे कश्मीर को जीत लिया है, आप हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 75 सीट आउट ऑफ 280 इज नॉट मोर देन इवन 23%। तो 23% वाला जीतता है कि जिसने 140, हमारा आंकड़ा आज आया है 138 to 140 आया है। और तीसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ये इंडिपेंडेंस जीत के आए हैं, ये मैक्सिमम वो लोग हैं जो हमारी जमातों से निकले इधर उधर, मैंडेट्स के चक्कर में, इंटरनल इश्यूज के चक्कर में जो ग्राउंड लेवल पे हुआ, क्योंकि बहुत जल्दी से इलेक्शन किया गया, ये वो लोग हैं, ये बीजेपी के लोग नहीं हैं। हाँ, आज आप इनको खरीदने निकले हैं, आज खरीदारी हो रही है बीजेपी की तरफ से, और जो उनकी बीजेपी की यहाँ पे पार्टी है, अपनी पार्टी, उनकी तरफ से वो खरीदारी करने निकले हैं, इंटिमिडेशन कर रहे हैं इन लोगों को। मगर मरहबा जम्मू कश्मीर के अवाम को, कश्मीर ने आज आपको दिखा दिया, आपको यहां से सिर्फ 1.79% वोट मिला है। 98% ऑफ द वोट इज अगेंस्ट बीजेपी। सो आप कैसे ये शाम के आपने इस मीडिया चैनल्स पर आप दिखा रहे हैं जी, आपने बहुत कमाल कर दिया यहां पर। एक प्रेस बयान के मुताबिक पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने अल बदर तंजीम के साथ काम करने वाले 4 नौजवानों को 23 और 24 की दरमियानी शब को गिरफ्तार करके उनकी निशानदेही पर AK-46, एक मैगजीन, 28 अदद गोलियां और एक हथगोला बरामद कर लिया है। पुलिस बयान के मुताबिक एक मुसद्दिका इतला मिलने पर जनूबी कश्मीर के डाडसर ओवंतीपोरा में अस्करियत पसंद मौजूद है। इलाके का घेरा किया गया और अल बदर तंजीम से काम करने वाले 4 अशखास को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। इधर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग से ही पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने एक नाके के दौरान एक गाड़ी से चर्स बरामद किया है और 3 अशखास को गिरफ्तार करके उनसे 96,000 नकदी भी बरामद कर ली है। पुलिस बयान के मुताबिक संग्राम चौक में ये कार्रवाई अमल में लाई गई। FIR दर्ज करके मजीद तहकीकात जारी है। जनता दल यूनाइटेड के सदर GM शाहीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनाइटेड जनता दल की बॉडी को तश्कील नौ देने का फैसला साजिर करते हुए ज़िले तरक्याती इलेक्शन में मायूस कारकर्दगी दिखाने की वजह बता दी है। शाहीन का मजीद कहना था कि पिछले इलेक्शन में उनकी पार्टी ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, लेकिन इस बार मायूस कुन, इसलिए पार्टी को तश्कील नौ देना लाजमी बन चुका था। टोटल आई JDU की, हम ये मानते हैं कि जो मैंडेट आना चाहे था पब्लिक की तरफ से वो नहीं आया। कहीं ना कहीं पार्टी लीडरशिप या वर्कर्स या पार्टी के जो बैकबोन जो रहते हैं, जो पार्टी जनरल सेक्रेटरी, जो वर्किंग कमेटी टीम रहती है, उनकी कमी रही, और जिसके ऊपर रिव्यू हम लोग कर रहे हैं। और टोटल क्या वजह रही कि हमारा जो जम्मू कश्मीर में जो प्रदर्शन रहा, कम रहा, जहां हम 15-20 सीटों की बात कर रहे थे, वहां 5 सीटें कोई बड़ी बात नज़र नहीं आ रही, जो हम खुद मानते हैं। जिसमें एक हमारा कैंडिडेट जो शुपियन से है वो पार्टी बैनर पे जीता, और 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो हमने इंडिपेंडेंट्स उठाए थे, जिनमें से 4 जीत कर आ गए। और उसके लिए हम लोगों ने आज की जो मीटिंग बुलाई है, हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर रिव्यू किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में जब भी असेंबली इलेक्शंस हो, पार्टी एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट लेकर लोगों के सामने आए। ये हमारी कोशिश है। और उसके साथ ही जो लोग अच्छा काम नहीं कर सके इस DDC इलेक्शन में, हम उम्मीद करेंगे कि वो
अपनी गलतियां, जो भी कमज़ोरियां हैं, उनको ठीक करके एक अच्छा मैंडेट लेकर लोगों के सामने आए। और ज़रूर जो है कि पार्टी, हम ये सोच रहे हैं इसके ऊपर हम लोग काम करें कि जो एग्जीक्यूटिव टीम है JNK की, JDU की, उसको हमें डिज़ाल्व करना पड़ेगा, और ताकि हम रिव्यू करके फिर एक नई टीम जम्मू कश्मीर में बनाए। और इसीलिए आज के बाद जो है फिलहाल जब तक नई एग्जीक्यूटिव टीम नहीं बनती, जो पुरानी बॉडी है उसको हम डिज़ाल्व करते हैं। तो नाजरीन, ये था खबरों का खुलासा। दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।